Good morning, students. I welcome you on the online classes of SGOI. In the last class, we have completed the theory related to the exercise 4E. That means I have told you the theory of terminating decimal and the reoccurring decimal and non-terminating decimal. Okay. In today's class, we will be discussing the questions of exercise 4E. That is question number 1, question number 2, and question number 3. In question number 1, it is being said express each of the following एज अ रिकरिंग डेसिमल. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यू हैव टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू द रिकरिंग डेसिमल. ओके, इन फर्स्ट पार्ट द क्वेश्चन इज 20/3. 20/3. So what you have to do, you have to follow the same steps which I have told you during the theory class. So you have to divide 20 by 3. It will be 3 6 18. When you subtract, you will get 2. डेसिमल पुट करोगे आप तो 0 कैरी कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, अगेन 3 6 18. देन अगेन यू विल सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट 2. डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे है, फिर 0 पुट करोगे तो यू विल गेट 3 6 18. अगेन सब्ट्रैक्ट करोगे 2 अगेन मिल जाएगा. ठीक है, और डेसिमल लगाओगे फिर यहाँ पे यू विल सी दैट पैटर्न दैट इज 6.66666 विल बी कैरीड आउट. तो यहाँ से क्या होगा, 666 क्या होगा, कैरी ऑन होगा अप टू n नंबर ऑफ टाइम्स. तो मैंने क्या बताया इसके लिए, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 6 पॉइंट और डेसिमल के बाद कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 6 रिपीट हो रहा है फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स. इसके लिए आप 6 के ऊपर ऐसा एक छोटा सा बार बना दोगे. ठीक है, तो आंसर वुड बी 20/3 का आंसर वुड बी 6.6 और 6 के ऊपर क्या है, बार है. इसका मतलब है ये जो 0.6 है ये रीअकरिंग है और ये n नंबर ऑफ टाइम्स तक अकर होगा. ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस. In question number 1, second part, it is given 3/11. The question is 3/11. Here you can clearly see denominator is greater than the numerator. इसका मतलब स्टार्टिंग में ही डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा आपको. तो you will be writing 11 here and 3 here. Okay, क्योंकि छोटा है 3, 11 से डेसिमल आप पुट करोगे यहाँ पे and you will get 30 here. Now read the table of 11, you will get 2 times 11 2s are 22. When you will subtract, you will get 8 from here. Then again you can put 0 here. फिर क्या होगा, 11 7s are 77. Subtract करोगे आप, what you will get, you will get 3. डेसिमल ऑलरेडी पुट है तो 0 कर सकते हो फिर से. तो 11 2s are 22. Subtract, you will get 8. अगेन 0 पुट कर देंगे, 11 7s are 77. सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से 3 मिलेगा. दैट मींस ये 2 7 2 7 2 7 क्या होगा, n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा. दैट मींस क्वेश्चन में आंसर वुड बी डेसिमल 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 एंड दिस पैटर्न विल बी फॉलोड अप टू n नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, देयरफॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 0.27. और क्योंकि 27 ऐसी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, दैट मींस आप 27 के ऊपर एक बार लिख दो. तो आंसर फॉर दिस 3/11 विल बी 0.27 विद अ बार. ओके, so similarly you can solve all the other parts of this question number 1. I'll be telling you the last part of this question also, and rest all the other parts will be your homework. The last part of this question number 1 is 2/13. It is 2/13. The process will remain the same. That means you have to you have to convert all these fractions into recurring decimal by the same process which you have been doing in the last questions. You have to write 13 here and 2 here. 2 is smaller than 13, therefore you are required to place a decimal before. You will get 0 here. 13 1s are 30. When you will subtract, you will get 7. Again decimal already given, therefore you can put a 0 over here again. Now you know that 13 5s are 65. Now you subtract, you will get 5.
देन अगेन डेसिमल है वहां पे तो 0 कैरी कर लोगे आप. ओके, इट विल बी 13 3 39. You will subtract. What you will get? You will get 11. Again you are required to put a 0 over here. You know that 13 8s are 104. You get 13 8s are 104. Again subtract, you will get 6 here. ठीक है, अभी भी क्या हुआ, यहाँ पे जो कोई भी नंबर है रिपीट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमको 6 को भी एक बार और 0 लगा करके यहाँ पे करना होगा. ओके, नाउ व्हाट यू विल गेट? 13 4s are 52. You will subtract, you will get 8. Now again you have to put a 0. 13 5s are 65 and you will get 13 6s are 78. Now you will subtract, you will get 2 as a remainder here. ठीक है, तो you can clearly see, अब ये यहाँ पे 2 आया है, इसके आगे मैं इधर पे कर दे रहा हूँ. 2 है, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 0 आप पुट करोगे यहाँ पे. ठीक है, और उसके बाद 13 से फिर डिवाइड करोगे इसको, तो 6 के बाद क्या आएगा? 13 1s are 13. सब्ट्रैक्ट करोगे you will get 7. तो आप क्लियरली आप देख पा रहे हो कि अब 1 स्टार्टिंग में आया था, अब दोबारा से 1 अपीयर हुआ है, यहाँ 7 है, तो फिर से यहाँ पे 0 लगा के 70 करते तो फिर 5 आ जाता. इसका मतलब है यू कैन क्लियरली सी कि जो पैटर्न है वो 1 5 3 8 4 6 के बाद फिर से रिपीट होके हो जाएगा 1 5 3 8 4 6. इसी तरीके से फिर से आएगा 1 5 3 8 4 6. दैट मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू एक बार आने के बाद दोबारा यही आएगी, फिर से वही आएगी, और अप टू n number of times. Okay, so from here you can clearly see कि आंसर वुड बी 0.153846 और इस पूरे के ऊपर बार आएगा. Why? Because यही नंबर अब दोबारा से रिपीट होना शुरू होगा. ठीक है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि आपको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि कोई एक पैटर्न दोबारा से फॉलो होना या रिपीट होना स्टार्ट ना हो जाए. ओके, तो दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम एंड आई रियली वांटेड टू टेल यू बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे डेसिमल के बाद नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो आई होप यू कैन सॉल्व ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला गया था कि फ्रैक्शन से आपको रिकरिंग में जाना है, और इन क्वेश्चन नंबर 2 यू आर सपोज टू कन्वर्ट फ्रॉम रिकरिंग नंबर्स टू द व्हाट, टू द फ्रैक्शंस. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन 0.6 और उसके ऊपर एक बार. ठीक है, इट इज सेइंग 0.6 एंड देयर इज अ बार ओवर 6. तो जो भी इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो जो भी क्वेश्चन गिवन होता है उसको आप एक वेरिएबल मान लेते हो, लेट कर लेते हो कि ये जो नंबर है वो उस वेरिएबल के इक्वल है. तो आप बोलोगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 और उसके ऊपर बार. ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.6 और उसके ऊपर बार. नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अगर इसके ऊपर से बार हटाओगे तो आप 6 को n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवा सकते हो. तो आप ये भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन. ठीक है, अगर अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये देखते हैं कि हमको x को चेंज करना है उस नंबर में जिससे कि हमको डेसिमल के इधर एक वैल्यू मिल जाए. आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सारे नंबर 666 हैं, इसका मतलब है सिर्फ एक ही नंबर है जो लगातार रिपीट हो रहा है, और जब एक नंबर लगातार रिपीट होता है तो आप हमेशा x को 10 से मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, कब करते हो 10 से मल्टीप्लाई? जब सिर्फ एक ही नंबर रिपीट कर रहा होता है. और क्यों करते हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको. तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई और इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 10x इज इक्वल टू, और इस पूरे डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक जो 6 है वो उठ के
डेसिमल के इधर आ जाएगा, तो यू विल गेट 6.66666 एंड सो ऑन। ठीक है, इतने सारे 6 रिपीट हो रहे हैं कि एक 6 अगर डेसिमल के इधर आ गया तो भी n नंबर ऑफ 6 में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी कि x इज इक्वल टू 0.666 है और 10x इज इक्वल टू 6.666 इज गिवन। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लेट करो इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। What you have to do? You have to subtract equation 1 from equation 2. तो क्या आ जाएगा, 10x is equal to 6.66666 और यहाँ पे हो जाएगा x is equal to 0.66666 and so on. Subtract करेंगे तो what you will get? You will get 9x from here is equal to, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये डेसिमल वाला सारा का सारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ 6 में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इज इक्वल टू 6/9 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने x को ही लेट किया था ये डेसिमल नंबर और x की वैल्यू अल्टीमेटली हमें कितनी मिल गई, 6/9 मिल गई। ठीक है, तो दिस इज द what you can say detailed method of solving such kind of question। और ऐसे क्वेश्चंस का एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज शॉर्टकट मेथड? अगर इसी नंबर को सॉल्व करना होता 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है और उसको डायरेक्टली अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप सीधे क्या लिख दोगे, आंसर डेसिमल सब भूल जाओ, सिर्फ लिख दो 6 और अपॉन में उतने ही 9 लिखने हैं जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा होगा। यहाँ पे सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो सिर्फ एक 9 यहाँ पे लिख दोगे एंड 6/9 विल बी योर आंसर। अभी शायद आपको ये इतना क्लियरली समझ में ना आए, लेकिन जब मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। Let's take part number 3. Question number 2, part number 3. It is given 0.34. It is given 0.34 और 34 के ऊपर बार। मैंने क्या बोला था, इसी को लेट करते हैं x. You will be writing let x is equal to 0.34 और उसके ऊपर बार। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है कि x is equal to 0.34343434 and dash up to n number of times। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि x या पूरी इस इक्वेशन को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ऐसा करने पे पूरा रिपीटिंग डेसिमल का एक पेयर इधर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब हमको 10 से नहीं इस बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पूरी इक्वेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 100x इज इक्वल टू 34.34343434 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ फिर से वही, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट equation 1 from equation 2. You have to subtract equation 1 from equation 2. Subtract करोगे तो 100x में से x subtract होगा तो 99x आएगा is equal to, इसमें से subtract होगा तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट तो सारी की सारी सेम है तो वो कट के 0 हो जाएगी और 34 minus 0 34 ही रहेगा। You will get 99x is equal to 34, तो x is equal to 34/99 and this will be your answer। शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते थे, मैंने क्या बताया, जो रिपीट हो रहा हो उसको बिना डेसिमल के एज इट इज लिख दोगे और डिनोमिनेटर में उतने ही 9 लिखोगे जितने की वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, 2 वैल्यू, तो इसका मतलब आंसर में डिनोमिनेटर में डबल 9 आएगा।
तो डायरेक्टली आप आंसर 34/99 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव टू इट्स लास्ट पार्ट। बाकी बचे हुए 2 पार्ट हम अपने आप से ट्राई करेंगे, ठीक है। इट इज गिवन, फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट। इट इज गिवन 1.243 एंड इस पूरे 243 के ऊपर बार है, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.243 और इसके ऊपर बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1.243 एंड 243 एंड अप टू n नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब है डेसिमल के बाद 243 n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब 3 डिजिट नंबर है जो कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इस पूरे पार्ट को हमको डेसिमल के इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। और डेसिमल के इधर लाना पड़ेगा पूरे पार्ट को, तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। तो अगर x में 1000 मल्टीप्लाई करोगे आप तो यू विल गेट 1000x इज इक्वल टू, अब ये 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये पूरा उठ के इधर आएगा, यू विल गेट 1243.243 एंड सो ऑन, ठीक है। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। You have to again subtract equation 1 from equation 2. Subtract equation 1 from equation 2. ठीक है, when you will subtracting 1000x में से x subtract होगा तो what you will get 999x is equal to, इसमें से ये subtract होगा तो डेसिमल के बाद वाले नंबर सारे के सारे क्या है, सेम है। 243 तो 243 एक मैंने 243 लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये भी n नंबर ऑफ टाइम्स जा रहा है और ये भी n नंबर ऑफ टाइम्स जा रहा है। इसका मतलब इधर और डेसिमल के बाद वाले नंबर और इसके डेसिमल के बाद वाले नंबर सारे के सारे डेसिमल नंबर्स को खत्म कर देंगे और सिर्फ यहाँ कितना बचेगा, 1243 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, यू विल गेट 1242, ठीक है। नाउ x विल बी इक्वल टू 1242 अपॉन 999, ठीक है, एंड दिस विल बी योर आंसर। इसका अगर शॉर्टकट मेथड आप देखोगे तो मैंने अभी तक क्या बताया, अभी तक जो नंबर आप कर रहे थे उसमें ऐसे लिखा था 0.3 पे बार या 0.24 पे बार, इस तरह था। डेसिमल की इधर कोई भी नंबर नहीं था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, डेसिमल के बाद एक नंबर है। तो इसका शॉर्टकट मेथड अगर आपको जानना है तो क्या करोगे, आप सीधे लिखोगे पहले जो रिपीटिंग डेसिमल है 243 माइनस करोगे जो डेसिमल के इधर पे वैल्यू है दैट इज 1, और नीचे का तो सेम रहेगा सिस्टम कि जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उतने ही नंबर ऑफ नाइन्स आप लिख दोगे नीचे, तो 999। तो आंसर फॉर दिस विल बी 242, सॉरी 1 भी लिखेंगे ना, बिकॉज़ पूरा नंबर कितना हो गया 1243, ठीक है, पूरा नंबर इज 1243 क्योंकि हमको डेसिमल हटाएंगे तो पूरा नंबर मिलेगा 1243 और जो नॉन रिपीटिंग नंबर है वो 1 है, तो यहां से मिलेगा 1243 माइनस 1 दैट इज 1242 अपॉन 999, और ये आपका शॉर्टकट मेथड है और ये क्या है, कन्वेंशनल मेथड जिससे आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। I have told you part number 1, part number 3 and part number 5. I hope you can solve part number 2 and part number 4 by yourself. Now moving to question number 3. Question number 3. In question number 3 again you have to convert the reoccurring decimals into the fractions, ठीक है, लेकिन इस बार रिकरिंग डेसिमल होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे। कैसे डिफरेंट होंगे, लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन 0.16 और 6 के ऊपर बार। अभी तक जो भी आपने नंबर्स को चेंज किया वो सारे नंबर्स ऐसे थे कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर थे उनके ऊपर बार ऑलरेडी पूरे में था। इसमें क्या 1 पे बार नहीं है और 6 पे बार है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिर्फ और सिर्फ कैसी है, एक शॉर्टकट टेक्निक है और उस शॉर्टकट टेक्निक से ही हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यूजिंग शॉर्टकट टेक्निक। ठीक है,
वो शॉर्टकट टेक्निक का मतलब क्या है, सबसे पहले आप डेसिमल भूल करके, बार भूल करके पूरा नंबर लिख दोगे, दैट इज 16, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल 1 और 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.16666 अप टू n नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद जब सॉल्व किया तो एक बार 1 आया, उसके बाद हर बार 666 ही आया क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसको चेंज करके पहले लिखोगे, इसको डेसिमल भूल जाओगे, बार भूल जाओगे, आप सीधे लिख दोगे 16, ठीक है। उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे वो वैल्यू जो रिपीट नहीं हो रही है, और इस वाले नंबर में कौन सा रिपीट नहीं हो रही, 1 रिपीट नहीं हो रहा है, तो यू विल बी राइटिंग 1 यहाँ पे। अब बात आती है डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में आप वो लिखोगे जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उतने नंबर ऑफ 9 लिखोगे यहाँ पे, और जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है उतने नंबर ऑफ 0 लिखोगे यहाँ पे। फिर से बोलता हूँ कि पहले क्या करोगे, आप इस पूरे नंबर को एज इट इज लिख दोगे यहाँ पे विदाउट इंक्लूडिंग डेसिमल एंड बार। उसके बाद इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे वो नंबर जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे 1 रिपीट नहीं हो रहा है, और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, उतने नंबर ऑफ 9 पहले लिखोगे जितने नंबर ऑफ वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है तो एक बार 9 लिख दिया, फिर उसके आगे उतने 0 लगाओगे जितने नंबर ऑफ वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही हैं। एक नहीं रिपीट हो रही तो एक बार 0 लिखा, ठीक है। तो यू विल गेट 15/90। आप चाहो तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो एक पार्ट और बता देता हूँ, बाकी दिस यहाँ से कंप्लीट है एक्सरसाइज। नेक्स्ट डिस्कस लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। इन इट्स फोर्थ पार्ट इट इज गिवन 0.1234, 0.1234, ठीक है। इससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या बोला, पहले आपको एज इट इज नंबर लिख देना, यहाँ पे 3-4 के ऊपर बार है तो आप लिख दोगे 1 2 3 4, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कि 12 रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप 12 को एज इट इज यहाँ पे लिखोगे। फिर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, उतने नंबर ऑफ 9 लिखते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। 2 रिपीट हो रही है तो 2 बार 9 लिख दोगे आप, और नंबर ऑफ जीरोस कितने लिखते हैं, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, तो 1 और 2 नॉन रिपीटिंग है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 यहाँ पे लिख दोगे। व्हेन यू विल सबट्रैक्ट दिस यू विल गेट 1 2 2 2 अपॉन 9 9 0 0, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो या फिर एज इट इज भी लिख सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। So I hope you can solve part number 2 and part number 3 by yourself. This is the completion of exercise 4E and we'll be starting with exercise 4F in our next class. Thank you.